welcome to WeLearn. This is session number 10 of Travel and Tourism Management. And in this session, we are going to study about developing tourism plans. The topics covered in this session are introduction, supply side planning technique, plan formulation by checklist techniques, survey of area characteristics, location, natural environment, historic influences, socio-cultural and economic patterns, land use, settlement and tenure patterns, survey of institutional elements, present development policies and plans, government and tourism organizational structures, investment policies and availability of capital, tourism legislation and regulations, tourism education, training programs and institutions. Now, let us first consider developing tourism plans. Now, whenever we have to develop a plan, that is a tourism plan, we need to keep three things in majorly important. Three things are mainly important, and these three things are techniques, surveys and area. सबसे पहले कि किस तरह की टेक्निक्स लगा के हम वो टूरिज्म प्लान कर सकते हैं. सर्वेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस एरिया का कितना पॉपुलेशन है, उस एरिया में कोई ऐसी जगहें भी है जो मेजर अट्रैक्शंस हैं, उस एरिया में किस तरह की अकोमोडेशन फैसिलिटी, लॉजिंग फैसिलिटी मिलती है, किस तरह की फूड सर्विसेज हैं, ये सर्विस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और उस पर्टिकुलर एरिया का सर्वे करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो एरिया का जो लैंड है वो कितना अवेलेबल लैंड है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है. नाउ the process for preparing tourism plans is a step-by-step procedure. We need to first understand कि जो process होता है tourism plan बनाने का वो एक step-by-step procedure है. That is, of course, it involves a lengthy procedure. However, as mentioned, we have already mentioned in the previous sessions that these steps are based on approaches of sustainable development and integrated tourism systems. सारे ही जितने भी steps हैं वो एक पर्टिकुलर लाइन्स पे बेस्ड है और वो है अप्रोचेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेटेड टूरिज्म सिस्टम्स. किसी भी टूरिज्म प्लानिंग, किसी भी सक्सेसफुल टूरिज्म प्लानिंग के लिए बहुत एक सक्सेसफुल टेक्निक होना बहुत ज़रूरी है. एंड देयर हैज़ टू बी अ सक्सेसफुल, नॉट जस्ट अ सक्सेसफुल technique for planning, tourism planning, but also that particular technique should be merged with a set of processes or ideas, and it can be finally implemented. Even though planning approaches and processes have varied in the past, all planning processes have begun with some study of the existing characteristics of land and development. Often this is called inventory. जो पुराने जो चलते आ रहे हैं हमारे लैंड एंड डेवलपमेंट के प्रोसेसेस, वो किसी ना किसी चीज़ से तो रिलेटेड है और आज हम उनको अभी तक एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस हैं और उनको हम यूज़ करते हैं, and that is why we call them inventory. That is what is called as inventory. Okay. Now, most of the studies often begin with lists of services and facilities, numbers and categories of lodging, food service and attractions. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर जगह पर लॉजिंग की ज़रूरत है कि किस तरह के वहाँ पर होटल फैसिलिटीज़ हैं, किस तरह से लोग रह रहे हैं, फूड सर्विस की ज़रूरत है और अट्रैक्शंस की ज़रूरत है. दैट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर टूरिज्म. Others begin with statistics on economic impacts, that is numbers of people employed in tourism, कितने लोग employed हैं tourism में, income and tax revenues produced, etc. Still others identify a broad range of factors, both natural, दो तरह के factors और आते हैं, दोनों मिला के इस तरह के factors होते हैं, natural factors भी हैं और cultural factors भी हैं. These techniques are intended to lay the foundation for creation of plans, and then सबसे पहले तो creation of plans है and that move forward from existing situation. In this session हम यही discuss करेंगे कि supply side planning की क्या techniques हैं और उन techniques को किस तरह से implement करा जाए planning के लिए, and the importance of the types of surveys in tourism planning, also the significance of area characteristics. So तीन चीजें जो हमने पहले बताई, that is technique, survey and area planning. So let us start with supply side planning technique. A very simple yet comprehensive supply side plan formulation technique is a 5-step process. सबसे पहले तो जो supply side planning की technique है उसमें हमारे कुछ steps आते हैं. That is a 5-step procedure. ये जो technique है इसके अंदर जो चीजें जो things that we need to keep in mind are the specifications
of tourism that is to be planned. Now let us see what are these 5 steps. One of these 5 steps is setting objectives. The key objective of any plan should be to provide planning action on. एक की ऑब्जेक्टिव है हर चीज में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि एक प्लान करना है सॉल्यूशंस टू कंस्ट्रेंट्स. वन सेकंड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेस्टिनेशन जोन्स विद ग्रेटेस्ट पोटेंशियल, एंड थ्री एक्शन ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज. सो दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके प्लान के, साइट सप्लाई साइड प्लानिंग के, आपके जितने जो टूरिज्म प्लान करने के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके सामने क्लियर होने चाहिए. उनमें से सबसे पहले आप अपने जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ले डाउन कर लेंगे. जितने सॉल्यूशंस हैं आपके, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उस पर्टिकुलर लैंड एरिया में तो आपको जो सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे. सेकंड, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो जो इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन जोन्स हैं और जो पोटेंशियल डेस्टिनेशन जोन है उनको. थर्ड इज एक्शन ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज. नेक्स्ट इज आवर second step, and that is called research. Now research is absolutely necessary for many reasons. Research बहुत ही ज़्यादा important है इस particular step पे, क्योंकि जितने भी accomplish through use of primary और secondary data, और ये research कैसे आती है, research आएगी जितने भी primary और secondary data, existing reports हैं, maps हैं, literature और surveys हैं उस जगह के बारे में, वो करे जाएंगे तो हमारा comfortable हो जाएगा. Research is absolutely necessary for many reasons. For example, it is essential for determining the potential destination areas, and it also helps to place the region in proper geographical and competitive context. Research के बाद पता चल जाता है कि exactly वो जो area है, जिस जगह के बारे में आप research कर रहे हो, वो जगह अभी कहाँ आती है map में, exactly where that place is placed. Next is synthesis and conclusions. Now, many project teams use this step in planning. That is, to formulate a plan, many teams use this step. इस step में क्या होता है? Instead of going directly recommendations पे जाने से पहले जो भी research step में चीजें आई हैं उठकर, उन चीजों को पूरा evaluate करते हैं, इसके अंदर study करते हैं. इस particular स्टेप का ये मेन एम होता है, पर्पस होता है कि जितना भी जो भी डिराइव किया गया है रिसर्च से डेटा, उसको मिक्स कर दें फाइंडिंग्स से, और उसको मिक्स करके जो फाइंडिंग्स कैन बी बेस्ड ऑन बोथ क्वांटिटेटिव एंड एज वेल एज क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड कंक्लूजन्स फ्रॉम बोथ प्रोग्राम फिजिकल डेटा, एंड देन द मेन कंक्लूजन इज डिराइव्ड. थर्ड, दैट इज द थर्ड स्टेप. फोर्थ स्टेप इज कॉन्सेप्ट. We can also call it as conceptualization. इसके अंदर क्या होता है, उस लोकल पर्टिकुलर एरिया के जितने भी लोकलाइट्स हैं, जैसे लोकल सिटीजन्स हैं, द पब्लिक एंड प्राइवेट डेवलपर्स, और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, वो जितने भी हमने थर्ड स्टेप में रिव्यू किए फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स निकाले थे, रिसर्च स्टेप के फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स को इवेल्युएट करके, यहाँ पर ये जो फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स हैं इनको लोकल सिटीजन्स, पब्लिक, प्राइवेट डेवलपर्स और प्रोफेशनल्स रिव्यू करते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं. इस पर्टिकुलर स्टेप में अपनी क्रिएटिविटी एंड आइडिया फॉर्मुलेशन, दे हैव देयर इम्पैक्ट ऑन प्लान फॉर्मुलेशन पे. क्रिएटिविटी भी आ जाती है और आइडिया फॉर्मुलेशन भी हो जाता है. दिस रिक्वायर्स मेनी मीटिंग्स एंड वर्कशॉप्स टू हैव अ डायलॉग अमंग द वेरिड ग्रुप्स. द फाइनल रिकमेंडेशन डिपेंड्स ऑन हाउ वेल ऑल पार्टीज कैन विजुअलाइज चेंज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट्स. And finally, it is recommendations. Now, once the earlier steps have been followed, it is logical to make recommendations. एक बार ये सारे steps हो जाते हैं पहले के 4, तो एक important step आ जाता है, वो है recommendations का. Recommendations एक ऐसा step है, इस तरह की recommendations होने चाहिए plan के, that should make the tourism system more smooth and productive. इससे tourism system ज़्यादा smooth और productive हो जाना चाहिए. This 5-step technique till date is one of the most time-tested techniques as far as development of tourism plans is concerned. ये जो अभी आपने 5-step technique देखी, वो अभी तक की सबसे ज़्यादा most developed technique है जहाँ तक tourism plans का सवाल उठता है. सबसे पहले है अब हमारे पास plan formulation by checklist technique. अभी हमने एक टेक्निक के बारे में पढ़ा, वो था सप्लाई साइड प्लानिंग टेक्निक. अब एक दूसरी टेक्निक है यहाँ पर, वो है चेकलिस्ट टेक्निक. चेकलिस्ट टेक्निक में क्या होता है, this technique relies
on the creation of a checklist specifying the elements that should be included in a comprehensive national or regional plan. अगर एक national या regional plan बना रहे हैं tourism का, उसके लिए इस पर्टिकुलर टेक्निक में चेकलिस्ट बनाई जाती है. उस चेकलिस्ट में वो सब चीज़ें मेंशन की जाती है जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, जो जो चीज़ें चाहिए एक सक्सेसफुल टूरिज्म प्लान को बनाने के लिए. टूरिज्म डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स उसके अंदर आते हैं. नाउ आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि रूलेज 1994 में उन्होंने कहा था that we produce here the elements of checklist provided by WTO in their publication National and Regional Tourism Planning Methodologies and Case Studies. Tourism development, सबसे पहले tourism development objectives. Tourism development objectives include economic, environmental, socio-cultural and other objectives. उसके बाद जनरल बैकग्राउंड एनालिसिस होता है. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव, सोशियो कल्चरल और बाकी ऑब्जेक्टिव्स. उसके बाद क्या होता है जनरल बैकग्राउंड एनालिसिस. जनरल बैकग्राउंड एनालिसिस में ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कंट्री और रीजन. इसके अंदर क्या होता है ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कंट्री या रीजन दिया जाता है. ब्रीफ geographical description दिया जाता है of geology, landforms and hydrography with identification of areas geographically suitable for tourism development. इसके बाद होते हैं climate patterns and natural resource areas and existing land use and land tenure patterns. So these are very very important for the general background analysis. सबसे पहले तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कंट्री और रीजन होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर जगह की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है. उसके बाद ब्रीफ जोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि उस जगह की क्लाइमेट कैसी है, जियोलॉजी कैसी है, लैंडफॉर्म्स क्या है, हाइड्रोग्राफी क्या है. उसके बाद क्लाइमेट के पैटर्न क्या है कि यहाँ पर क्लाइमेट कैसे बदलता रहता है, क्या यहाँ एक्सट्रीम टेम्परेचर्स रहते हैं या एक नॉर्मल टेम्परेचर में रहता है. नेचुरल रिसोर्स एरियाज और एग्जिस्टिंग लैंड यूज और लैंड टेन्योर पैटर्न्स के बारे में पता होना चाहिए. एंड कल्चरल पैटर्न्स ऑफ ट्रेडिशंस, रिलीजियस एंड सोशल वैल्यूज एंड अदर रेलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑन ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज. These things are very very important when doing a survey. Next is tourist attractions and activities and their improvements. उसके बाद टूरिस्ट की जितनी भी अट्रैक्शंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं और उसके बाद उनकी जो इम्प्रूवमेंट है वो. इससे पहले हमने एक स्टेप मिस किया है और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एनालिसिस एंड रिकमेंडेशंस. इसके बाद एक की स्टेप आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एनालिसिस एंड रिकमेंडेशंस. इसमें एनालिसिस ऑफ एक्सेस टू द कंट्री और रीजन बाय एयर, लैंड एंड रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन देखा जाता है कि अगर इस पर्टिकुलर जगह पे पहुंचना है तो ये कितना आसान है पहुंचना, क्या यहाँ पर कोई कनेक्टिविटी है, बाय एयर आ सकते हैं या बाय लैंड आ सकते हैं या कोई रिलेटेड ट्रांसपोर्ट है या नहीं है. उसके बाद एनालिसिस होता है इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, कितनी फैसिलिटीज और सर्विसेज इंटरनली है या नहीं है. एनालिसिस ऑफ अदर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ वाटर सप्लाई कैसा है, वहाँ इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कैसी है, सीवेज और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल है. इन सब चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है. और मेन है जो हर जगह हमको चाहिए टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क्स. क्या वहाँ पर नेटवर्क अच्छे से इस्टेब्लिश है टेली कम्युनिकेशन के लिए. एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स ऑन डेवलपिंग टूरिज्म. Now let us come to tourist attractions and activities and other improvements and their improvements. Now survey के बाद क्या होता है, survey and inventory of existing and potential attractions and activities. इसके अंदर सर्वे किया जाता है जितने भी पहले से अट्रैक्शंस बने हुए हैं, पहले से जो एक्टिविटीज़ हो रही है उस रीजन में, उसका सर्वे किया जाता है. उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शंस विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अट्रैक्शंस. उसके बाद इवैल्यूएट किया जाता है कि यहाँ के जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो कौन से हैं, आइडेंटिफाई किया जाता है उनको और प्राइमरी और सेकेंडरी अट्रैक्शंस को बाइफिकेट किया जाता है. रेकमेंडेड इम्प्रूवमेंट्स एंड कंजर्वेशन रिक्वायर्ड फॉर ऑफ द अट्रैक्शंस. जितने भी रेकमेंड किए जाते हैं अट्रैक्शंस उसमें से वो निकाले जाते हैं कि हाँ ये अट्रैक्शंस अच्छी हैं. नेक्स्ट इज टूरिस्ट फैसिलिटीज एंड सर्विसेज एंड देयर इम्प्रूवमेंट्स. नाउ survey of existing and already planned accommodation by number, type, location and quality level. जो पहले से ही प्लान लोकेशन है उनका सर्वे होता है और देखा जाता है कि वो अकोमोडेशन ठीक है कैसी है, उसको किया जाता है बाय नंबर, टाइप, लोकेशन एंड बाय द
quality, कि how better this is, how well this is, and will it be beneficial for the people who will be coming for a tour over this at this place. Survey of existing and already planned other tourist facilities including tour and travel. ये देखेंगे कि वहाँ पर टूर एंड ट्रैवल की फैसिलिटीज़ हैं, ऑपरेशंस हैं, रेस्टोरेंट्स, बैंकिंग एंड मनी एक्सचेंज, हैंडीक्राफ्ट, स्पेशलिटी एंड कन्वीनियंस शॉपिंग, मेडिकल एंड पोस्टल फैसिलिटीज़ है वहाँ, और बाकी सर्विसेज लाइक पब्लिक सेफ्टी एंड टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सर्विसेज. सो ऑल दीज थिंग्स should be coming under the tourist facilities and services जो कि टूरिस्ट को प्रोवाइड करना है जनरल पब्लिक को जब वो उस पर्टिकुलर जगह पे उसको देखने आए, वहाँ रहने आए. Next is evaluation of tourist facilities and services with recommendations on improvements required. उसके बाद अगर उन जगहों को देखेंगे, अगर वो एग्जिस्टिंग सर्विसेज की जगहें हैं, उसके बाद उनको इम्प्रूव करने की टिप्स देंगे कि अगर उनको कुछ चेंज करना है वहाँ पर तो उसकी टिप्स भी देंगे और चेंजेस भी करेंगे उस जगह पे. रेकमेंडेड एक्सटेंट एंड फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म. अब बहुत अलग अलग फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म है. फर्स्ट इज determination of tourism carrying capacities of various potential tourism areas and the entire country or region based on environmental, socio-cultural, infrastructural and tourist satisfaction considerations. Determination of the most, सबसे पहले डिटर्मिन करेंगे वो वाली एरियाज को जहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिज्म आएगा, जो कि पूरी कंट्री को एक इन्वायरमेंटल, सोशो कल्चरल, इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिस्ट प्लेस की तरह देखने में फोर्स करती है वो जगह, और लोगों को सेटिस्फैक्शन हो उस जगह पे जाके. डिटर्मिनेशन ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म. जो मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म है उनकी डिटर्मिनेशन करेंगे by location based on inventory and evaluation of tourist attractions and activities, carrying capacity of market analysis and other considerations. And next is determination of the most suitable amount or extent of tourism based on the carrying capacity and market analysis, importance of tourist attractions and other considerations. Now, market analysis and projections, this we will do in the next session. So, this is what we are going to cover in part 2 of session 10.